यार लेकिन इसमें तो वो है ना कि तुम तो जहन्नम में जाओगे यार, पढ़ तो लो यार। वो नहीं पढ़नी हमने, एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़नी है हमने, हाउ टू ब्रेक योरसेल्फ भी पढ़नी है, हाउ टू मेंड योरसेल्फ भी पढ़नी है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश भी पढ़नी है हमने। ये नहीं पढ़ना कि आप चाहते क्या है, क्रिएटर ओजी वही है, The OG. the OG, the only God. So ये नहीं होगा कि अच्छा आज अब मैंने अगर एक नमाज पढ़ लिया तो अब मुझे सारी जिंदगी के लिए मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे पहले की आइडेंटिटी थी। You will slowly break down that identity and build it up. मतलब उसमें 10 साल भी लग सकते हैं और शायद मुझे उससे sometimes waking up at Tahajjud becomes easier. It is so awesome. It's such a rockstar feeling, by the way. So once you start to seek, then read the next line. Allazina yuminuna bil ghaib. Bhaijan, trust the ghaib. And ghaib for me becomes everything that is non-sensory rather than just non-seen. पीने का खर्चा करना है, जिम जाने का खर्चा करना है, even though आप लोगों का जिम बहुत अफोर्डेबल है. So everybody join the gym. I just realized that 52% of our viewers have not subscribed yet. So अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है and you believe in the cause and the change we're trying to create, subscribe to our channel and help us grow and become a part of the change that we're trying to create. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For all the people tuning in again, it's been a while since we did the discourse. We have, as always, somebody very, very special. Somebody that I don't know too well. I just know, I know off, and I'm sure everybody knows off as well. But somebody that I met a while ago and was pleasantly surprised कि वो नसिया में आ रहे थे, पढ़ रहे थे. And so we have with us today, no introduction needed, but we'll still try and get to know him, Mr. Muneeb Nawaz Saab. Jazakallah for joining us. We also have Arslan Ayub, as always, with us. Muneeb Saab, I want to start and just sort of jump into it. Because we know of you. ठीक है ना, मैं भी बैठ के क्लॉड से पूछ रहा था कि प्लीज जल्दी गिव मी अ समरी ऑफ द डिटेल्स, राइट? एंड ऑब्वियसली देयर सो मच, सो मेनी अचीवमेंट्स, सो मेनी माइलस्टोन्स अचीव्ड, बट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ गो बैक एंड मेक बी टेक अस थ्रू टाइम. हाउ डज इट बिगिन? वेयर डिड यू ग्रो अप? What were your aspirations? How did you end up here? I know it's a long journey, but let's try and work through it. Easy up. I was born in Lahore. Okay. I went to HSN, moved to Karachi when I was in a very weird circumstances of family. Yeah. And lost track. Came back. Yeah. Was brought back, alhamdulillah, slowly and steadily. और तब बचपन में सबको डॉक्टर बनने का शौक होता है. मैं भी डॉक्टर बनने के लिए निकला था. मैं फिर वो नहीं कर सका फॉर वट एवर रीज़न. गॉड हैड बेटर प्लान्स फॉर मी. एंड डॉक्टरी के बाद मैं आई वेंट इनटू IT. जब वो सारा MCSC और वो सारा कुछ चल रहा था, Oracle एंड ये वो सारा कुछ, गॉट इनटू दैट. मतलब कॉर्पोरेट भी करते रहे आप? नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, IT इन द सेंस वो पढ़ाई थोड़ी बहुत कर ली थी. वैसे जाहिल आदमी हूँ तो थोड़ी बहुत वो पढ़ी. उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी नहीं समझ आया, काम शाम इतना वो. आई गॉट इनटू डिज़ाइन वेरी वेरी अर्ली. वेरी वेरी. I heard 11. हाँ, I heard 11. हाँ, माई फर्स्ट, मुझे फिर मेरी भाभी ने मुझे याद कराया कि वो किया था कुछ, मुझे वो याद भी नहीं था. काइंड ऑफ इरेस्ड अ लॉट ऑफ दैट द फर्स्ट 16 years ऑफ माई लाइफ वेरी वेरी ईजीली और वेरी लकीली. सो उसके बाद फिर बाय आई थिंक 17ish, actually I was at a mosque outside. Somebody was wearing one of my kurtas and somebody walked up to him and said कि ये बड़ा मज़ेदार है, तुमने कहाँ से लिया? तो उसने कहा इसने बनाया. तो he offered me an internship. That guy turned out to be Amir Adnan. Oh wow. So मैंने उनके साथ थोड़े अरसा काम किया. Who's been a mentor and elder brother since then. एंड उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई शायद नहीं की हुई थी. आई जस्ट डन इंटर. तो हिम एंड हिज सिस्टर आस्क्ड मी टू गो बैक टू स्टडी. आई गॉट कॉलेज एडमिशन एंड साथ साथ पढ़ाई की, साथ साथ काम शुरू कर लिया. I was 17-18 I think. College you're back in Lahore? No, college I was in Karachi. Still in Karachi. हाँ. Still in Karachi. So अभी कराची में था. कराची में फिर started working, started making my own clothes.
और बल्कि अब मुझे बोलते हुए तो याद है शायद उससे पहले भी एक एग्जीबिशन की थी, तो उसने कुर्ता पहना हुआ था या कुछ पहना What was the inspiration, like even before, like you know, that ये जो early age पे ये जो drifting towards the world of fashion or this, where does that come from? So I the had family inspiration. No, there was no family thing. I saw जब नया नया डिश टीवी आता था ना, तो वो FTV पे मैंने somehow एक फैशन शो देख लिया था. That was like मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. I was like ये क्या हो रहा है? This is very cool because they were very nice clothes. There was just there was just something that just was like, it's either this doctory or death. Big spectrum, huh? हाँ, alhamdulillah. I think वो जो broad spectrum horizon था वो शुरू से ही था, I think. And I've been writing most of my life, so I either wanted to become a writer as well दरम्यान में. So फिर वो writing मुझे लगा मेरी बहुत dark हो गई थी. So I didn't want to kind of show it to people because it was very personal and very obscure, and मैं बहुत ज़्यादा death metal सुनता था उस वक्त, और वो black metal और heavy metal type situation. और तो वो करते करते somehow मैंने design वाला काम शुरू कर दिया because I didn't want to let go of my poetry. It was very personal. और फिर बस design college में बच्चों को साथ साथ बेचता था और फीसें जमा करता था, और थोड़ी बहुत मांग के भी दे दिए, किसी ने कभी हेल्प भी कर दी. So वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, and it just went on from there on in, and alhamdulillah it's been what 20 some years already. Yeah. That You still miss Karachi though? Like do you miss the city? So the thing is कि मैं वहाँ पे ना उस टाइम पे गया था जहाँ पे which turned out to 90s? be 90s, You were in college? 98. Just trying to guess. 98 is your 99, college. yeah, 99 type situation. So वो जो इंटर के दोस्तियाँ होती हैं और वो सेमा गुर्बत की दोस्तियाँ, या वो वाली जो एक बड़ी ऑथेंटिक लेवल की दोस्तियाँ, हाँ, जो दोस्तियों के ऊपर ना आप बस पे जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, गाड़ी आ गई तो गाड़ी पे चले गए, किसी दोस्त ने कोई खिला दिया, कुछ अच्छा खा लिया, कोई वो अंडा घोटाला खा लिया, वो वाली सिचुएशन कर ली. तो वो सो आई थिंक वो वाली दोस्तियाँ बड़ी मीनिंगफुल बन जाती हैं. आई थिंक यू एस्टैब्लिशिंग, एंड ऑल्सो आई वाज अ वेरी स्पॉइल्ड sheltered sort of a livelihood in Lahore, and a complete contrast in terms of lifestyle in Karachi. So then it opened up my life to a completely different set of people. Self-identification एक बिल्कुल ही नहीं हो गई थी कि यार ये तो वो एचसोनियंस नहीं हैं और आप क्या कर रहे हो. बट लकीली वो एचसन से पढ़ने से आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाती है, थोड़ा बहुत समझ आ जाती है, वो वाले फ़ायदे भी थे. So Karachi made me make friends who worked with me at 3,000 rupee jobs as well, who are now mashallah SVPs, VPs, presidents of companies and all that. Very hardworking, hustler mindset वाले, जैसे कराची का एक है. Got to meet some amazing people, built my connections. मैंने फिर अपना ब्रांड भी उसी टाइम पे लॉन्च कर दिया था. सो वो सारा कुछ, वो जो एक आपकी बेस लेवल मुझे लगता है मैं पैदा तब हुआ था. So the Muneeb Nawaz that the world knows was born in Karachi. The Muneeb Nawaz that my family knows was born in Lahore. So वो जो है, so obviously उसके वो मेरे childhood friends हैं. और वो most of them are in touch. I'm trying to reconnect with them these days अब ज़्यादा, because लगता है कि ज़रूरी है. Now as you progress in life, you want to stay connected with those people who have seen you be nothing and build. So they also remind you of कि यार अच्छा, what was your building mindset, and you talk to them about what they're going through. So वो that really there's no helps. filter, like they know you. हाँ, they see. So like लाहौर में मेरे वो 4-5 दोस्त हैं जो those remember who I could have been. तो वो कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, but also because I spent the next 15 odd years over there. So वो 10-12-15 साल जो कराची में रहे हैं, उसके अंदर वो बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनी हैं कि यार अच्छा, हफ्ते में 4 दफ़ा मिल रहे हैं, बेशक चाय पी रहे हैं, लेकिन रोड पे खड़े हुए 6 रुपए की चाय पी रहे हैं या वो कर रहे हैं. असल में कराची में चाय भी अच्छी है. कराची में चाय, यार लाहौर में मुझे ना चाय पे आने बहुत मसला हुआ था. अभी तक बड़ा मुश्किल होता है कि एक आध कोई अच्छी जगह मिल गई तो चलो पहुंच गए, वरना यहाँ पे भी वो नहीं है कल्चर वो वाला. यहाँ पे थर्ड कल्चर है. अब हम थर्ड कल्चर वाले हो गए यार. अब क्वेटा पे नहीं बैठा जाता. इट्स डिफिकल्ट. हालांकि बट देन वंस अगेन द ढाबा चाय इन कराची इज अनमैच्ड. एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज मोस्ट टाइम यूथ आर लिसनिंग, एंड हमारे यूथ के अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि एक होता है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन. एंड व्हेन यूर टीचिंग, एंड वी टीचिंग सो मेनी पीपल यूनिवर्सिटी वगैरह, तो आई लव हाउ दैट यूर समवन हु इज़ फॉलोइंग हिज पैशन, राइट. एंड ये तो अल्लाह ताला की नेमत है. सो मेनी पीपल विद पैशन
are not able to translate it into, because ground reality के पैसे भी बनाने हैं, मतलब सेटल भी होना है, फैमिली भी चलानी है. ये जो होता है लीप ऑफ फेथ जो आपने लिया, बिकॉज डॉक्टरी, फैशन, and you're saying nobody in your family is coming from that background जो शायद इस इंडस्ट्री में थे या whatever, maybe business owners से, I don't know, या जो भी. तो ये जो लीप ऑफ फेथ होता है, where you're saying I'm going to do this, it's going to support me, sustain me, I'm going to make money, I'm going to make my name. ये लीप ऑफ फेथ कितना स्केरी होता है. आज के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफरेंट भी है. सॉरी टू कि जैसे मुझे पता है कि आज टी शर्ट, ट्राउज़र, डेनिम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. बहुत सारे लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, अपना ब्रांड नाम लगाते हैं. आई एम श्योर बैक देन वो इतना आसान था ही नहीं. सोशल मीडिया, उसकी कैसे लोगों को रीच करना है, गो टू मार्केट कैसे होगा, तो वो रेजिलियंस और वो पैशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसको करने के लिए. So people who are not following their passion, it is not their passion. They're lying. It's just cool to say I have a passion of doing something cool. Bro, it's not. That's not your passion. That's just your social media handle. Maybe. Yeah. वो है. If you're not doing, if it's not making you do it, it's not for you. It's just your words. So मैं वही कहता हूँ कि एक आपकी active passion होता है, एक आपका passive passion होता है. So जो आपका active passion होता है, it makes you pursue it. You go crazy pursuing it, dreaming about it, thinking about it, getting crazy, irrespective of what the world is saying. वो जो गैब वाली बात मैंने आपसे शुरू में की थी, वो फिर आपका ना वो somehow वो belief system बन रहा कहाँ से बनता है मुझे नहीं पता. I was a loser and a half person, still feel like that at times. But चक्कर ये है कि वो नहीं, आप नहीं, if your passion is not making you do it, you're just saying it. Because it's cool to say that kind of stuff कि मैं बड़ा वो हूँ. It's cool to be passionate about things. So it's cool to be passionate about things, but it's actually really cool to be following your passion. It is such an amazing feeling कि आप, और आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपको धक्के पड़ते हैं, आप उसके बगैर नहीं कर सकते. बट वो ये मुझे लगता है कि बच्चों जो यंगर किड्स हु हैव दोज पैशन एंड वो उसके बारे में बात करते हैं और कि मेरे पास आते हैं, दे स्पीक अबाउट कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो मैं कर क्या रहे हो. So by the end of it, it is the action that is going to lead you down the path. सबसे पहले आप ये अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि मेरा दिल खोल दे, फिर मेरे एक्शन सही कर दे, फिर मेरे अल्फाज सही कर दे. So हम पहले अल्फाज बोलते हैं, दिल खुला नहीं होता, एक्शन किए नहीं होते, अल्फाज 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 तो किसी को समझ नहीं आते. तो वो जो रबी शल्ली वाली एक वो दुआ है, वो मुझे लगता है कि वो सारा एप्पल जो कंपनी है वो उसके ऊपर फॉर्म्ड है. If we get into that, that's how कि आप सबसे पहले डिज़ाइन तो आना, क्रिएटिविटी तो क्रिएटर से ही आनी है. बिल्कुल. So you just have to be open to it. So when you have a passion, you have to believe कि पता नहीं वो कैसे होना है. क्योंकि जब तक आपको ये पता होगा ना ये कैसे होना है, तब तक वो आप फिर बहुत लॉजिकलाइज कर लेते हो, मुझे लगता है. एंड पैशन इज इरैशनल अ लिटिल बिट, इमोशनल डिसीजन. It has to be logical. It has to be, because otherwise the world would remain the same, would remain within the logical bounds, and so much is happening in the world that is not logical. तो वो फिर आपको लॉजिक से अपने दिमाग की लिमिटेशन और फिर दिल और रूह के साथ आपको कुछ ना कुछ, आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, आई एम जस्ट सेइंग कि if it's not making you pursue it, if it's not making you go crazy, if it's not making you believe in the unseen, if it's not making you create a path that nobody's ever walked on, you are not really passionate about it. वो जुनून नहीं है आप में. आपके अंदर इंक्लिनेशन हो सकती है, शौक हो सकता है, पैशन नहीं हो सकता. मेरा शौक हो सकता है, मेरी हॉबी हो सकती है, मुझे पसंद है, हो सकता है, मुझे उससे प्यार है या वो नहीं हो सकता. वो बड़ा मुश्किल होता है. It's a tough situation. I don't think Steve Jobs would have been able to explain it, or anybody else for that matter who's been some crazy stuff as well. It is a very heartfelt place. So जो आपने कहा कि प्लान और एक्सिक्यूशन, मुझे ना प्लानिंग आती थी ना एक्सिक्यूशन आती थी, कसमें. It was just I felt, now when I look back at it, I think that's when the passion started. And maybe also the opposition to the idea helped. Oh yeah. That rebellion. Proving people. Because it's not proving people wrong for me, it's proving myself right to me. So वो मैं, और वो proving myself था, even right भी नहीं था कि यार ये अब मुझे शौक हो गया है. अब मैं तो अभी तक उसको शौक भी कह लूँ तो मुझे लगता है कि this is going way ahead of my understanding of the passion should be what it should be. But वो करना है और करना शुरू कर दिया. अल्लाह ताला ने पहली शर्ट में 50 रुपए का प्रॉफिट भी करा दिया. तो मैं कहा यार ये
तो अब मैं क्या करूँगा इतने सारे पैसों में 2 शर्टें बेची थी मैंने तो 100 रुपये प्रॉफिट आ गया था. सो वो सो द थिंग इज के when the small looks like that big that people can think कि यार ये सोच नहीं रहा, इसको नहीं समझ आनी, and you still pursue it, that's the fun of it. That's when you start building the blocks properly. If you don't want to build the blocks, that's entirely up to you, and there's nothing wrong with you saying कि आपको शौक है और आप नहीं करते. कोई मसला नहीं है. आपने जब होना होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा. There's so much that I feel has happened in my life which I had no control over, good and bad, and grateful for both. Because in terms of like because because I'm sitting for the first time with you, but even for the first time I met you, तो मैंने बाद में देखा ना अरसलान ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था like this मुनीम नवाज, and I heard the name. So मैं कोई बहुत ज़्यादा I think जिस टाइम पे मैं जो गफलत की ज़िंदगी में थे उसमें मैं बहुत वेस्टर्नाइज था, तो वैसे भी मैं कभी ईस्टर्न के बारे में मैंने बहुत नहीं सोचा था, या एटलीस्ट तो आई नो द नेम, आई डोंट नो द पर्सन. सो आई मीट यू and I think first thing I said to someone, I met, Muneeb Nawaz studying in Nasia, and I was like, such a down-to-earth guy, like, I just met him, and humble guy. So I'm just thinking, and it's something that the youth struggle with as well, क्योंकि अब तो 100 likes, 200 likes पे ही बंदे का ego कहीं पहुंचा हुआ होता है, and you're thinking I've made it, with so much happening, and I'm going through your profile and international awards, and I can't even imagine what that feels like, right? Being recognized for something you've created, it's your passion, then it's like national, international level. उस सब के साथ साथ, like, I'm sure the plane is going 900 miles an hour. How do you stay connected to the roots? And I think that's like the youth need to hear it, right? कि आप अभी भी अपने roots, अपनी जो एक self है, जो अपनी ये बात की है कि अंदर से ये जो internalization आ रही थी कि यार ये मैं नहीं हूँ, because I know and I want to come to that journey where there is God, there is no God, and how do you maintain that balance? कि नहीं यार, I'm human, I have a past, I have a history, and there's so much. Like, how do you stay grounded? In fact, what was your tool to stay grounded? So, the tools are probably spending alone time. Okay. Bilkul quiet. Okay. No screen, no this, no nothing, no noise. Somehow I was lucky enough to have been granted that loneliness when I was very young, where nothing made sense. And I would just, हम लोग एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे, मैं somehow उधर जाके ऊपर वाले फ्लोर के साइड पे एलिवेटर शाफ्ट के पास जाके बस समुंदर को देखना शुरू कर देता था कि I'm assuming that really helped me do some catharsis. It did not make sense at that time, but now when I look back at it, that was probably the first block. Writing was another block. So basically, is anybody teaching you, guiding you, or is this you? No, at that time. Well, there's someone guiding, but you are you're alone technically. Alhamdulillah. Yeah, subhanallah. So दोनों चीज़ें बहुत powerful हैं. The catharsis and writing very effective. At a young age to have that much muhasaba is actually insane. वो ही मैं अब देखता हूँ कि यार इलमिया तो बड़े cool है तेरे साथ. So I have that very. Somebody was asking me my son was asking me who's your best friend. I was like, आजकल तो अल्लाह चल रहे हैं भाई. So Lucky you. तो वो. So the tool would probably be spend alone time. Okay. Because a lot of people don't spend alone time. I think once you start being graced with loneliness and you find it not to be pinching and get across those initial tears, वो 4, 6, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, जो भी, वो आप you get through it कि यार ये मैंने क्रॉस ओवर करना है, and you will connect, you will start hearing a voice. कल मेरे साथ जिंदगी में पहली दफ़ा हुआ है और almost heard my brain and my heart talking. Like I heard their conversation. There was a thing that was bothering me. एक दिन मैं दिल की सुन लेता, एक दिमाग, एक दिन दिल, एक दिन दिमाग, and both are contrasting opinions. And yesterday I was just like, अच्छा दोनों बोल लो, तुम लोग बोल लो, मैं सुन. So I think once you get into that sort of comfort with yourself, and then so I used to read a lot random stuff, and मैंने वो बहुत सारी self help की किताबें, spirituality की किताबें, comparative religion की किताबें, लकीली थोड़ा सा कुरान, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि यार हम सारे एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, उसका नाम है सुकून. और हमारी एक किताब है,
वो हम उसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का मतलब क्या होता है? पीस। वो एक किताब है द बुक ऑफ पीस, वो नहीं हमने पढ़नी। हमने उस ज़बान में पढ़नी है जिसकी हमें कोई समझ नहीं है। तो फिर हम कह रहे हैं यार लेकिन इसमें तो वो है ना कि तुम तो जहन्नम में जाओगे। अब यार पढ़ तो लो यार, बेसिक एक किताब का बूथे पे लिखा हुआ दिस इज द बुक ऑफ पीस, वो नहीं पढ़नी हमने। एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़नी है हमने, हाउ टू ब्रेक योरसेल्फ भी पढ़नी है, हाउ टू मेंड योरसेल्फ भी पढ़नी है, हाउ एवरीथिंग इज हाउ टू व्हाट इज दैट वो क्या द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश भी पढ़नी है हमने, वो एवरीथिंग इज डैश भी पढ़नी है हमने, वो पढ़ना है हमने, ये पढ़ना है हमने। ये नहीं पढ़ना कि आप चाहते क्या हैं। बाय द एंड ऑफ इट व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू जस्ट लिव इन पीस। ठीक है। और एक किताब है जो कह रहा है हमारा पूरा जो सारा वो नैरेटिव है वो इस लफ्ज़ पे ही है। वो किसी इंसान के ऊपर नहीं है, वो किसी इवेंट के ऊपर नहीं है, वो किसी और चीज़ की, एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी है, वो है पीस। सो देन आई से एनी पर्सन who is at peace with themselves then technically becomes a Muslim. And any person who is not at peace with themselves, difficult. ठीक है। So if you are, तो इसके टूल्स हैं उसके अंदर, हमारी किताब के अंदर सारे टूल्स लिखे हुए हैं कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उस बंदे ने ये किया था तो उसकी ये वो स्टोरी है, उसको अब तुम कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में कैसे वो अंडरस्टैंड कर लो, अप्लाई कर लो, तो वो तुम्हें स्टोरी का मफहूम समझ आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी पे अप्लाई हो जाएगा। इट्स लिटरली एज सिंपल एज दैट। देयर इज जस्ट स्टोरीज, राइट? देयर इज अ एवरीथिंग, एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद कि यार ये हम बात करेंगे, ये एक साहब सब्जेक्ट ए हैं, उनके साथ ये एक इवेंट हुआ, उस इवेंट में ये 70 लोग थे, ये 10 लोग थे, ये 30 लोग थे, ये 300 लोग थे, ये उनके ऑपोजिशन थे, ये उनके फॉर थे, जो फॉर थे वो ये करते थे, जो अगेंस्ट थे वो ये करते थे। उन्होंने उसके अंदर से ये जिस निकाली, उन्होंने उसके अंदर से ये विजडम निकाली, और ये विजडम को इस तरह अप्लाई किया, और ये अप्लाई करके उन्होंने जीत गए थोड़ी देर के लिए और लंघ गए। ठीक है। और वो लेसन तुम्हारे लिए छोड़ दिया कि अब यू डू व्हाट यू वांट टू डू विद इट। सो हम लोगों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेट और इतना कमोडिटाइज कर दिया सैडली कि लोग अब वो, मैं वही कह रहा था, हमने तो सारी वो हाथ पे फुटे खा के कुरान पढ़ा है ना, तो वो किस तरह की पढ़ाई होगी? सो आप उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, फ्रेंच ट्रांसलेशन, जो आपने पढ़ना है, आप यू जस्ट गो थ्रू इट इन अ लैंग्वेज दैट यू कैन बेसिकली जस्ट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये करने से वो आपका नमाज नहीं हो जानी। एक लफ्ज़ ही समझ लोगे तो एटलीस्ट यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट कनेक्शन विद वन वर्ड एट अ टाइम, and then you build on the second word, and then you build on the third word, and then you build on the fourth sentence and the fifth sentence, and it will eventually be good for you. Like हम लोग, yes the discipline has to be there, but मुझे यही वाली बातें ना कि अच्छा 5:08 नहीं हो सकते, मैं कहा यार हाँ अल्लाह मियाँ के पास सिर्फ यही है, वो सुबह उठ के ना देख रहे हैं 7.5 बिलियन बंदा जो है ना, उसमें से कितने ने 5:05 पे किया और कितने में 5:08 पे किया है। और ये आप किसके लिए कर रहे हो? आपको लग रहा है कि ये उधर जा रही हैं, भाईजान ये आपकी है कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, तो एक वो कोई बंदा खड़े होकर कह रहे हैं भाईजान अभी सब ठीक है, come to do the right thing right now, just keep on doing the right thing. वो बाहर खड़ा होकर 5 दफा कोई आपको आवाज दे यार भाईजान सब ठीक है, you're okay, this is good, this is salah, this is falah, this is it, because somebody much bigger than you has designed this for you. आपको ये कह रहा है एक बंदा 5 दफा आवाजें मार के, ठीक है, बट क्योंकि वो जुबान आपकी नहीं है, आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं अब फड़े जाएंगे। क्या है वो कह रहा है भाईजान तेरे लिए ये सब ठीक है, थोड़ी देर की ब्रेक ले ले। अब वो क्या कह रहा है भाई 5 मिनट की ब्रेक ले ले यार, जो भी तू कर रहा है ना 5 मिनट की ब्रेक ले। जैसे भी आप कह रहे थे कि यार इसके दरमियान में ब्रेक, वो क्या कह रहे हैं यार 5 मिनट की ब्रेक ले ले, आ जाएंगे वापस, यहीं पे बजना है, यहीं पे मरना है, यहीं पे करना है। 5 मिनट की ब्रेक लेके जरा अपने आप जस्ट सेंटर योरसेल्फ, इट्स मेडिटेशन राइट। सो इफ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर 5 मिनट्स 5 टाइम्स अ डे, 25 मिनट की आप मेडिटेशन दिन में करना शुरू कर दो, आप हर इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी। सो जस्ट, एंड वो क्या है, मेडिटेशन का पर्पस क्या होता है? पीस, centering yourself. So that's profound, man. But like I'll ask you something like that's deep,
And Okay. that's deep, but like, how does that start? Because I know this is something like, this is like 10, 15 years talking. Like, this is not yesterday, this is not 6 months ago, this is not ISD. This is, I don't know when it started for you. And मेरे दिमाग में तो क्या आ रहा था, मेरे दिमाग में एक डायकोटमी आ रही थी कि your field is like fashion, right? Is like fashion is kind. fashion. It's like, I don't want to say the wrong terms. मैं इसमें new हूँ. मैं नहीं मजाक कर It's रहा like, हूँ. I don't know. No, it's all good. But it's something that is so external. You Is understand? it? Like, yeah, this is the sort of, for the eye, for me, I'm looking at this guy who is like, his passion is the externalization of something. This is from a very, very layman perspective. And I Okay. want you to correct me or Okay. improve it. कि आप देख रहे हो कि यार ये किस तरह बाहर से संवर रहा है इंसान. But when I speak to you, it's like there's so much going on inside. So I want to understand how these two things play off. Like, ये internal से externalization हो रही है because you know that dichotomy is sticking for me like day and night. But मुझे तो लग रहा है कि it's like Munib is like just all inside. It's everything is internal, like, and there's so much going on. I don't think fashion is a superficial business, to be very, very honest. Sure. I didn't It mean is, yes, yeah, it is yeah. seen. Yeah. Again, This is- वही so बात मैं है कि layman हम वो is right. sense, मैं उस perspectives को इस तरह देख रहा हूँ ना यार. हाँ, वो लोगों ने उसको अगेन कमोडिटाइजेशन, अब आप रिलीजन को भी हम लोगों ने यही किया हुआ है ना, कमोडिटाइज कर दिया, सुपरफिशियल बना दिया कि अच्छा जी आपकी दाढ़ी ऐसी होगी, आपके बाल ऐसे होंगे, आपके कपड़े ऐसे होंगे, तो आप ये हैं. अच्छा, बेशक पीछे से जाके लोगों को चंडे गिरा रहे हो, बिल्कुल. लोगों के पैसे मार रहे हो, लोगों Yeah. बैंक अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में पैसे पड़े हो और ये वो, तो भाई नहीं जी, वो सलाम वालेकुम चल रहा है. सॉरी, I'm there. But the point is कि सी हमने हर चीज़ को एक्सटर्नलाइज वो देखने से, सीइंग इज बिलीविंग पे ले आए. बट जो किसी ने कपड़े बनाए होंगे, कुछ सोच के बनाए होंगे, धागा जोड़ा होगा, किस सोच से जोड़ा होगा कि यार ये सिल्क वाम ने बनाता है, इसके अंदर से ये निकलेगा. सोचिए तो सही यार, उसके अंदर क्या आया होगा, कौन सी वो आई होगी डिवाइन Something, yeah. कि आप परेशान हो जाओ कि यार उसने ये क्या किया था, कपड़ा बनाया था यार, कपड़ा बनाया था, मतलब पता है. एंड देन उसने फिर उसको बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, अभी भी आप मतलब एक सादी चीज़ मैं बनाना शुरू करता हूँ, I am flabbergasted with the amount of nuances there are still in the field of fashion or textiles. कि हम लोग तो मतलब we're just scratching the surface still. So it is, yes, the process is very internal. No matter which designer you look at. आप भी कपड़े बनाते हैं, मैं भी थोड़े बहुत कपड़े बना लेता हूँ, बट वो चक्कर ये है कि it starts with your inner voice. And then people see it as however they want to see it. But when I look at fashion, मैं किसी अच्छे कपड़े वाले डिज़ाइनर की दुकान में, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं बाबा निकले, या मैं वो मूवी देख रहा होता हूँ तो यार उसके कपड़ों का बाबा प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स. बट देयर आर सो मेनी नुआंसेस. आप फिल्म देखते हो, आप परेशान हो जाते हो कि यार इसमें क्या सोच के उन्होंने ये सारी डेप्थ बनाई है, फैब्रिक के टेक्सचर्स, द नुआंसेस, द दिस द दैट, एवरीथिंग इज जस्ट, सो इट्स नॉट, सो व्हाट यू सी is so much there's so much more to that than what you see in fashion. Did this, and because आपके अपने influences बहुत सारे थे, हम पहले भी इससे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो I could tell there was a lot of influence, right? चाहे वो म्यूज़िक का हो, चाहे वो फैशन, वेस्टर्न फैशन हो, और फैशंस होंगी बहुत सारे, चाहे वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हो, और यू नो पूरी दुनिया में इतने सारे डिज़ाइंस हैं, ट्रेंड्स हैं, बट देन कहीं ये जर्नी है, connection है towards, you know, Allah subhanahu wa ta'ala, and, you know, trying to rediscover that purpose. I would love to know that transition, when it happened, if there was a transition. I don't know. Was there a transition? Was there something that triggered that? And how did that actually impact your, you know, वो जो internalization हो रही है, and then उससे जो external result निकल रहा है fashion में, how does that sort of come into play? So आपने काफ़ी सारे so we'll start with the trigger towards that. So I think the trigger was things going wrong. Okay. On an external, superficial type level, where you are lucky enough to have experienced something that is absurd and beyond your control. And चीज़ें जब सब कुछ टूटता है तभी उसको जुड़ने का मौका मिलता है, I think. So when somebody is breaking, I allow them to break. I don't immediately try to fix it. I can't, because मेरा वो नहीं है, शायद मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है. बट मुझे ये लगता है कि हाँ, थोड़ा सा टूटना फूटना
ज़रूरी होता है for you to be put back together in a more beautiful sort of way. Yeah. So what my initial thing was things going wrong with the fam jam and ये वो इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें हुई थी. That got me antagonistically into a perspective where I was like कि सब बकवास है ये, कोई फायदा नहीं. मतलब you're going to die, you know, it might as well be my fault type. So somehow I was exposed to a lot of music, and then I got exposed to very different kind of music, like a lot of alternative rock. I grew up on that. Then there was a lot of metal music that I kind of got exposed to, and मेरा वो एक culture और वो पूरा वो बन गया था एक cult कराची में ना, कि वो जो death metal listeners, underground concerts, concerts और ये वो. Then Pink Floyd came into my life, and I think a lot of these people have been divinely hit. और वो उनके अल्फाज, that's their expression. हाँ, उनके अल्फाज जो हैं, अगर if you kind of want to connect to a deity or divinity, तो वो आपको वहीं से लेके जाते हैं. There was Black Sabbath, there was a lot of like heavy metal influences. Metallica became one of like my favorite things to kind of connect to. One of their tools was Metallica, one of the tools was Pearl Jam. There's this band called Moonspell, even though उनके album का नाम ही irreligious था. But I felt so deeply connected through that. क्योंकि वो जो आपके अंदर ना जब कुछ खराब हुआ होता है तो आपको गुस्सा होता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ इस गुस्से में. तो इस गुस्से को एक्सप्रेस करना होता है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए रादर देन डिस्ट्रक्शन हो. और वो कंस्ट्रक्शन से शायद किसी और का भला हो जाए. तो वो आप जब तक निकालोगे नहीं तो वो आप यू आर होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज. सो उन्होंने बहुत मज़ेदार एल्बम्स लिखी, बड़े. सो अल्वर, सटर्नस, सटैरिकॉन, व्हिच इज लाइक अ एक्सट्रीमली irreligious band, और वो बहुत ही एंटी गॉड टाइप सिचुएशन भी थे. बट somehow when I was listening to them, मैं तो अल्फाज सुन रहा था, and I was like, हाँ, makes sense. And I was 18, 19, 20, 21. So मतलब so music became like a big inspiration, especially जो लोगों को नहीं समझ आ रही थी. समा मुझे पता नहीं समझ आ रही थी, और मेरे दोस्त अब भी नहीं सुनते, बट मैं किसी को बिठा के समझा के सुनाता हूँ ना कि यार ये देख, ये बंदा था, इसकी ये स्टोरी है, इसने तब ये गाना लिखा था, ये रिहैब से निकला था, इसका बच्चा के साथ ये हो गया था, गॉड फॉरबिड इसके ये हो गया था. सो देन दे स्टार्ट टू ओपन अप द वो आपको समझना तो तभी शुरू होगा ना जब आपका दिल में कुछ उसकी वो आएगी. सो वन थिंग वाज दैट. सो आपने कहा ट्रिगर क्या था? ट्रिगर आई थिंक थिंग्स गोइंग बैड थी. दूसरी चीज आपने कहा कि the process, so to say, क्या था? Yeah, like that transition lengthy. How did you find reason? Like, I can, by the way, when you were talking, I understand why you gravitate towards Sheikh Hashim actually now. अच्छा, बिल्कुल, like he spoke like on a very similar, like when you speaking about his past, so he spoke about how music. So yeah. So I think art really does a number on you, like good literature. Yeah. Art, like paintings. Anything with soul, right? Yeah. Anything that requires creativity. I think what we need to focus on is more creativity as a process for your sanity. हम लोग कंजम्पशन में इतना फोकस करते हैं, हम लोग क्रिएशन पे नहीं फोकस करते हैं. जब आप क्रिएशन पे आते हो तो फिर आप क्रिएटर के पास जाना शुरू करते हो, बिकॉज ओरिजिनल क्रिएटर ओजी वही हैं. The OG. The OG, the only God. So the OG is, there's only one OG, right? So वो जब आप को, बट आप उस की तलब तो आप, और वो भी तौफीक से ही आती है. आई डोंट नो, उसके लिए आप किसी को कुछ तोड़ना पड़ता है, किसी को चंडे पड़ती हैं, किसी को धक्के पड़ते हैं, किसी के पैसे जाते हैं, किसी के सेहत जाती है, किसी के साथ कुछ और होता है. बट अगर आप बहुत ही अक्लमंद हैं तो आप बगैर कुछ करे अगर पहुंच जाओ तो फिर तो आप मतलब रॉक स्टार, वो रॉक स्टार होते हैं. सही चंडे खा के तो सभी हम जैसे भी लूजर पहुंच जाते हैं इधर उधर. तो वो, सो आई डू थिंक सो जो ट्रांजिशन था, आई थिंक काइंड ऑफ happened in the sense कि हम लोग कहीं पे थे, उन लोगों की ये इंक्लिनेशन थी. मेरे एक दोस्त ने कहा यार चल आके इधर बैठ जाते हैं, एसी वाला कमरा है. That always works. That always works. So एसी वाले कमरे हम चले गए. somehow the other, because somehow मुझे था शौक. I thought there has to be something more than what I understand, because I couldn't understand much. I don't want to interrupt, but like ये जो है inclination, that हल्की सी that spark, right? एक तो खैर it's fitra, Allah has put inside you,
but is that coming some influence of like friend, family, कहीं दूर से I do think यार मतलब something? मेरी माँ has been a very very positive influence. नमाज़ें वो पढ़ती थी, even though मैं उनको ये कहता हूँ भी मत्था मारने और रटे मारने से कुछ नहीं वो होता, but वो I'm sure, but when you see it, आपको कुछ ना कुछ तो होता है. And then I've seen the other side of it as well. People not adhering to it, doing well. People adhering to it, doing really unwell. So एक exposure, so to say, शायद था. And again, poetry really helped, music really helped, because वो भी यही था कि यार ये creative process है. And so वो जो है उसके अंदर कोई pinpoint नहीं मैं कर सकता, but यही है कि हाँ transition आया इस तरह कि मैं एक जगह पे बैठ के वहाँ पे एक बंदा बैठ के कह रहा है कि यार मैं म्यूज़िक बजाता था और वहाँ पे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं जो कि सिगरेट भी पी रहे हैं और वो बाहर जाके सिगरेट पी के वापस आ रहे हैं. रॉक स्टार भी बैठा हुआ है, जुनेद भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. देयर आर यू नो अदर म्यूजिशियंस उस वक्त अंडरग्राउंड वाले वो हमारे टाइप के वो बॉयज़ बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ी में बात हो रही है. सो इट्स नॉट लाइक वो वाली कि तुम मर जाओगे तुमने अगर शलवार ऊपर की नहीं की, तो वो वाला कोई वो डंडे नहीं पड़ रहे, वो वाली एक इजी कॉन्वर्सेशन चल रही है वेयर यू लाइक हाँ यार आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होनी हैं और अब आपने करना क्या है उस गलती का, मतलब आपने खर्चा रोज़ करना है ना. मतलब इफ़ यू जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, यार आपने रोज़ सुबह उठ के पेट्रोल का खर्चा करना है, खाने का खर्चा करना है, पीने का खर्चा करना है, जिम जाने का खर्चा करना है. इवन दो आप लोगों का जिम बहुत अफोर्डेबल है, but so everybody join the gym. I'm going to be giving personal classes. So but वो आपने जिम जाना है, आपने रोटी खानी है, आपने कपड़े पहनने हैं, आपने यू नो so अब आपने कमाना कैसे है, इसको इस तरीके से भी आ जाए. अच्छा आपने आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खर्चा करना है, अब आपने उसको कमाना कैसे, आपने गलतियां करनी है, आपने उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा कैसे करना है. और वो अच्छा आपने अपनी नीयत से करना है, किसी और की जजमेंट के लिए नहीं करना. सो वो ट्रांजिशन मेरे ख्याल से ये आया कि मैं उस क्लास में पहुंच गया. उस क्लास में मुझे And you're a young guy, like I was 20, very 21. young, 18, 19. Oh wow. Probably, yeah. I think around that. So सी के आस पड़ोस में होगा. मुझे समझ आई, नहीं भी आई तो भी मैंने कहा कि यार फिर आई थिंक वन ऑफ द अदर टूल्स इज कंसिस्टेंसी. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू रिमेन लाइक यू सेड, ये एक साल की बात नहीं है, ये रगड़ा लगता गया है. द एवोल्यूशन आई कैन स्टिल सी हैपनिंग. मतलब आई डोंट नो इफ आई एम देयर येट, बट आई डू सी कि यार अच्छा ये मेरी ना उसको मैं कहता हूँ डेली क्लोजिंग. सो मैं रोज़ रात को अभी भी घर के बाहर बैठ के ऊपर जाके बाहर बैठ के अच्छा जी बता दें क्या सीन है आपका, आज क्या कहा मैंने, क्या गलत किया, कहाँ ये वो. सो मैं डेली क्लोजिंग अभी भी करता हूँ. आई हैव रीस्टार्टेड दैम, आई काइंड ऑफ टुक अ ब्रेक. सो वो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू डू फील इट, कीप डूइंग इट एंड कीप अलाउइंग इट टू हैपन. That's why, because it will happen to you or you will keep making it happen. I don't know what happens, but just keep allowing it to happen. Don't get into blocking the good stuff that is coming your way. So आपने अगर पैसे खर्च करने हैं, पैसे कमाने हैं, बुराइयां करनी है तो अच्छाइयां करनी है, उसको नेट पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है. बाकी तो ऊपर जाके पता चलेगा भाई जान. अभी तो एंड में क्या है, अभी तो ये इसका रिजल्ट नहीं सामने का रिजल्ट क्या. हाँ उसका रिजल्ट नहीं अभी आपको, बट रिजल्ट है भी. आई डू फील देयर इज अ डेली रिजल्ट. if there is a momentary result, if you at any given point in time can be okay, I'm good to go. If you can get there, that's a good result. That means you're वो fine. चेक आपने बताया वो ठीक है, बिकॉज इफ यू आर एट पीस तो फिर हाँ. So अगर आप वहाँ तक मतलब yes you probably won't be there 100%, but if you're there more than 50% you're okay. बिकॉज थोड़ी बहुत तो रहनी भी चाहिए ना, मतलब थोड़ी सी दुनियावी नेस भी तो रहनी चाहिए कि थोड़ा सा रगड़ा रहना भी चाहेगा. सो अगर आपको लगे कि यार अच्छा टुडे आई वर्कड टुवर्ड्स पीस, that is decent enough. So there's a thing called the study of presence. वो जो सारी ये किताबें नहीं होती, Be Here Now, Story of Now, The Secret, Trump. ये सारा this is the philosophy called the study of presence. And if you look at our religion, I think it is the base root of all of that as well. It is all about come to peace. ऐथे ही सब कुछ है, चिल कर, easy हो जा भाई. मतलब so
जब हम वो सूरह फातिहा में भी ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अनअमता का मतलब आप मुझे बताएंगे अंग्रेजी में? We favored you, blessed you. The people you ब्लेसिंग, favored, blessed. ब्लेसिंग का एक और लफ्ज़ मुझे बताएंगे? आप किसी को गिफ्ट देते हैं, Favored you. नहीं, गिफ्ट के बाद एक और लफ्ज़ आता है, आप किसी को क्या देते हैं? yeah. We'll take some time on Spot this. पे डाल दिया उन्होंने. हाँ ना? Like as a सूरह हाँ. फातिहा teacher. नहीं वो, बट मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आप मुझे गिफ्ट का एक और वर्ड बता दें, ब्लेसिंग का एक और वर्ड बताएं अंग्रेजी में. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड एक और, you'll get there. We should get that. We have to cut this part. हाँ ये वाला. I'm thinking you ये cut it and हाँ, it's like yes, हाँ. favored, blessed, gifted, rewarded. यार, come आप on, किसी यार, को नाम चला दो एक people that तोहफा देते हैं, बर्थडे, Yeah. बर्थडे. प्रेजेंट. ओके. Subhanallah, you cut this. So अब ये बिल्कुल ना काटी. वसीम ये कॉफी में तुमने क्या? यार एक गर्म पानी की उम्र देते हैं. So yeah, present, right? So the biggest gift that you're getting is you being present. Yeah. And then connect that to the study of presence. वो क्या है being present? Subhanallah. सो ये तो हमारी पहली चीज़ ही है. और वो सूरह फातिहा क्यों है, फातिहा का क्या मतलब होता है, ये तो आपको क्विकली बता देंगे, इसको एडिट नहीं करना पड़ेगा. हाँ, Opening. ओपनिंग. Yeah. ऑल्सो ओके, इसको फिर एडिट करना पड़ेगा. Yeah. Also- Beginning. ओके, ऑल्सो व्हेन यू आर द फातिह ऑफ Winner, victor. Victory. Yeah, victory. Yeah. so this is the opening chapter is this is victory. Yeah. So this is when you come to we have given you the presence. Yeah. ठीक है. That, yeah. You and alayhim blessed, you have been blessed with presence. ठीक है. तो बस फिर That's victory. that's when you come to your present self. अब आपके पास अगली चॉइस क्या है? जो मेरी बहुत गंदी डेफिनेशन है, प्लीज़ मुझे कोई मारे ना इस बात पे, बट मुझे लगता है कि वो जो FBL है, रब्बी कुमार तो ज़बान जो है, इट्स बेसिकली तुम किस नेमत, तुम where will you focus on? Sure. The blessings or the what you have or have not. Not. Yeah. Subhanallah. Right? Yeah. So फिर आपके पास सिर्फ ये दो चॉइस हैं. Come to your present, see what will you see now? What you have or what you don't have. Yeah. बस इतनी चॉइस आपके दिमाग में है. अगर आप है में आ जाओगे तो आप हैप्पी हो जाओगे. नॉट हैव में चले जाओगे तो बिल्कुल. सो मैं अपने वो बच्चों को ये कहता हूँ कि यू नो फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू and then we say happy type situation. So if you start focusing on what makes you happy in any given point in time, yes, you can be. I'm a really cursed human being. मुझे बहुत सारी लोग बहुत सारे बुरे अल्फाज में भी शायद या बहुत कम लोग बुरे अल्फाज में याद करते होंगे, बट वो भी होगा. But do I want to build my life on a few people that I might have done wrong to and live in that fear, or do you want to live in कि यार ठीक है, हो गया, आगे चलें, नहीं करना जो भी है. So that entirely becomes your that's your क्या कहेंगे free will. Sure. तो अब now it's all laid out in front of you. वो टोनी रॉबिन्स ने भी यही कहा था, लेकिन हम लोग टोनी रॉबिन्स की बातें मान लेंगे. Where energy goes, where focus goes, energy flows. So now it's up to you. हमने शायद वो 1400 साल पहले लिखा था. Obviously टोनी रॉबिन्स उससे पहले आया था. तो अंग्रेजी ज़ुबान हमारे से पहले किया, तो वो मतलब it's entirely up to you to read whatever you want to read. But it is whether you're looking at Dr. Joe Dispenza's work, whether you're looking at anybody's work for that matter, it's eventually leading you down the same path. But the core book of that is, this is the OG book. The OG. ठीक है. That's like I would argue like that's mercy and rahma, that in your situation at that age, and we see this happening so many times, you can end up anywhere. I did. Yeah. And I stayed there for a while this was happening. So I'm not, मैं लोगों को ये भी प्लीज बताना चाहूँगा कि do not think कि एक switch है. बिल्कुल. There is no transition moment. Yeah. It takes a long dash time. It's a process. Yeah. It is going to be, so ये नहीं होगा कि अच्छा आज अब मैंने अगर एक नमाज पढ़ लिया तो अब मुझे सारी ज़िंदगी के लिए मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे पहले की आइडेंटिटी थी. यू विल स्लोली ब्रेक डाउन दैट आइडेंटिटी एंड बिल्ड इट अप. मतलब उसमें 10 साल भी लग सकते हैं और शायद मुझे उससे
ज़्यादा ही लगे होंगे, maybe, yeah. 10, 11, 12 साल लगे होंगे, Hmm. शायद अभी भी लग रहे हैं, Hmm. ठीक है. But some of the decisions start to become easier Hmm. over time. Hmm. Like the क्या कहेंगे, the ability to say your prayers on time becomes easier. Sure. Sometimes waking up at tahajjud becomes easier. Sure. It is so awesome. It's such a rock star feeling, by the way. So वो मतलब वो होता रहेगा. So मैं थोड़ा सा इस मामले में मैं सब कुछ बच्चे या बड़े they start to feel very pressured all of a sudden कि यार अच्छा अब ये नहीं हो सकता, अब आपकी शलवार नहीं नीचे हो सकती, या आपका जूता ऐसा नहीं हो सकता, या आप घड़ी नहीं पहन सकते. अल्लाह रहम करे, पता नहीं अल्लाह मियां ने आपकी घड़ी देख के ना कहना यार चल चल बेटा नाच चा, ठीक है. मतलब अगर खुद ही इंट्रोडक्शन रहमान रहीम है, ठीक है, यस बाकी सारा कुछ भी है, मैं मतलब बट व्हाट यू फोकस ऑन, मैं तो भाई मुझे लगा दी. सो द थिंग इज कि the process is a very personal process. Yeah. You will find some people switch in a day, some people switch in a week, some people switch in a year, some people switch in a decade. और some people switch in a lifetime. मतलब उनको आखिरी 10 दिन में याद आता है कि यार ये भी सही यही था. Yeah. So you are not the judge of somebody's process. So whatever your personal process is, just keep going through it with the intention if you find it. क्योंकि हमारी तो बुक शुरू ही इस बात पे होती है ना, दिस इज द बुक फॉर दोज हु सीक गाइडेंस. सो ये सबसे पहली लाइन है कि अब ये उनके लिए हु सीक इट. इफ यू डोंट सीक इट येट, तो अभी आप पढ़ने का आपको कोई फायदा ही नहीं है. आप 6 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को पढ़ा, उसको वो सीक नहीं कर रहा, उसको तो रटवाया जा रहा है. उसको तो आपने सिर्फ वो जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं बिकॉज इट बिकम्स अ रिचुअलिस्टिक वो सिचुएशन, वो आपका एक सोशल वो है, ये आपका रिचुअलिज्म है, ये आपका वो है, इट इज़ अ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस. देन वो सीख नहीं भाई, पहली चीज़ है ये पहले सीख कराना है. आप उसको ये बता सकते हो 4 साल के बच्चे को कि आपने कैसे सीख करना है, क्या सीख करना है. अब ये सीकिंग की किताब है, आपने उसको इचन में डालना है, आपने उसको ABC पढ़ानी है, आपने उसको मैथ्स पढ़ानी है, आपने उर्दू पढ़ानी है, इस्लामियात पढ़ानी है, जो भी पढ़ाना है वो अब आप सीख कर रहे हो कि वो कर ले. बट वो सीख तो थोड़ा बहुत उसको सीख करेगा तो सीखेगा ना. तो वो सीख और सीखा मिक्स होना चाहिए. सो वो सीख, ये किताब है ही उनके लिए, दोज हु सीख. सो वंस यू स्टार्ट टू सीख, देन रीड द नेक्स्ट लाइन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. भाईजान trust the ghaib. And ghaib for me becomes everything that is non-sensory rather than just non-seen. So literally nonsense. You've got to trust the nonsense. हमने nonsense को बड़ा वो गलत derogatory बना दिया, but actually when you stop sensing, you start getting into an emotional side. आप अपनी आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, हाथ पे छोड़ दो, and start breathing. You will start slowly connecting to whatever's inside. तो पहली उसके बाद ये है you seek, फिर ये है, फिर वो है कि जी नमाज पढ़नी है. नमाज को भी हमने मेडिटेटिव और सेल्फ सेंटरिंग से निकाल के रिचुअलिस्टिक बना दिया है. हमने सेंसरी को भी सीन कर दिया है, नमाज को भी हमने रिचुअलिस्टिक कर दिया है. फिर उसके बाद क्या है कि जी हम लोग यू विल स्पेंड वाइजली फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन गिवन, सो रिकॉग्नाइज दैट यू आर बीइंग गिवन. Some of the biggest resources are what you have been given already: the time, the existence, the mind, the heart, the blood, the arms, the legs. जो ये तो resources आपके पास आपको given है. How are you going to spend it? Spend wisely. Resources, not just money. हमने उसको भी commoditize कर दिया है कि अच्छा जी ये आपके पैसे के रिलेटेड है. भाई पहले बता रहे हैं कि नॉनसेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो आपने उसको भी वो कर दो कि आप इसको आगे ले जाएं, स्पेंडिंग पे आ जाएं. उसके बाद क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. कॉन्सिक्वेंसेस की बात आ गई, ठीक है. आखिर का मतलब हमने आखिर भाई हर काम करने के बाद आप गाड़ी में थूक नहीं फेंकते पेट्रोल वाली जगह पे, क्योंकि उसका एक्शन का रिएक्शन आपको पता है क्या होना है. सो वो आखिरा
इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जस्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस. आप वो हज़रत अली का वो उस दिन मैं पढ़ा था कि ये मेरे दोस्त हैं सरफराज साहब, उन्होंने कहा हज़रत अली का नाम वो बड़े वो वाले हैं, तो वो कि हर सीड में दरख्त ऐसे छुपा, हर अमल के रिजल्ट ऐसे छुपा हो जैसे सीड में दरख्त. सो आपने वो अगली बात क्या आ गई, आखिरत की आ गई, विच मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर करंट एक्शन. और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये नॉलेज आपसे पहले भी आई हुई है, आपके बाद भी रहेगी. ठीक है. These are the successful ones. Yeah. Do what you can with this information. ये 5 लाइनों में गुजार लो, जिंदगी बहुत है. बाकी तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अच्छा उन्होंने अनसीन में कैसे बिलीव किया जब समुंदर में जा रहे थे, उन्होंने स्पेंड कैसे किया अपना टाइम, वेल्थ, रिसोर्सेज डिफरेंट लोगों ने, उसकी स्टोरीज हैं. सही काम कैसे किया है लोगों ने, जो नमाज का कॉन्सेप्ट है वो सही काम की तरफ गायब करना है, तो सही काम लोगों ने कैसे किए ओवर द नेक्स्ट 6000 आयाज अराउंड दैट पॉइंट. फिर आपने आखिरत या कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे चेंज किया विच वर नॉट मेकिंग सेंस, उससे कनेक्ट किया, उसकी स्टोरीज हैं. फिर आपने इसी नॉलेज की बातें की या उस नॉलेज को विजडम में कैसे कन्वर्ट करना है और लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसकी स्टोरीज है. और फिर लंघ जाओ. Subhanallah, like so एक तो like I love how, and I think that's not everyone can do this level of muhasabah and reflection. एक because I think, and उसकी एक वजह I think ये कि एक तो लोग सीख ही नहीं कर रहे, दूसरा I think we just don't value education that way, right? कि ये तालीम है. And I'm sure इसमें कुछ आपके अपने personal reflections हैं, but there's a lot of voices. I'm sure you've read up, followed, listened, thought about it, and I think it's just as a calm हमने छोड़ दिया ना करना कि बैठ के just with that focus going over something and just thinking about it. But what I'm sort of thinking is because this is a long journey. You've been on since maybe you were 18, 19. उसमें अपने ups and downs and highs and lows and all of that, right? Like very recently, and because that's how I got to know you, you decided कि अच्छा मैंने formally एक जगह enroll करना है. हालांकि मुझे तो अब लग रहा है कि ISD आपके लिए बहुत basic था, but you decided कि नहीं यार I need to, you ended up at some workshop, and I'm sure you've been through many programs. मैं नहीं कह रहा पहली बार आप गए हैं, I'm sure आपको बहुत सारा exposure हुआ होगा different things. Why was that decision to अच्छा मैं formally enroll करके देखता हूँ कि क्या होता है? Because I'm assuming you had a lot of base knowledge already. तो डरते डरते मैं ये भी पूछूंगा कि वो आपका एक्सपीरियंस रहा कैसा फिर, given that, right? मैं पूछूंगा because alhamdulillah we're doing this for Allah, and you know God knows I want to improve that as well. Yeah. Why did you choose to finally formally enroll? Was it the first time you formally enrolled in something? And then how was the experience? Why did I choose to enroll was I think one of the most important things that people undervalue is the environment. थोड़ा बहुत आपको, because मेरी एक दूसरी environment भी है, I'm sure वो उसका भी impact काफ़ी ज़्यादा होता है. And I feel कि अच्छी बात है, आपको हफ्ते में 2-4 घंटे निकाल के कर लेना चाहिए कोई एक ऐसा काम. And I'm generally very skeptical of such enrollments because मुझे वहाँ पे ना एक propaganda भी बिक रहा होता है मोस्टली जगहों पे. I've had some experiences which were not, मतलब I'm not judging them, which were not comforting for me. So but when I came here I was like यार मेरा पहली नीयत तो ये थी कि यार मैंने ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके, एक तो डिसिप्लिन आ जाता है थोड़ा सा कि आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है कि यार ये मैं कर रहा हूँ. एंड देन वंस यू स्टार्ट बीइंग इन अ माहौल, तो देन you start being more at ease in a certain sort of mahal. Your nervous system starts to regulate when you are in that space, in that sphere, in that ecosystem where everybody is there for whatever reason. But you know कि यार ये लोग कहीं ना कहीं से आए ही हैं. एंड मैं वो वाला था, मैं हमेशा कोने में बैठता हूँ बिल्कुल क्लास के, मैं कोई आगे फ्रंट बेंचर नहीं हूँ, मैं कोने में बैठ के सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि मैं इधर होना चाहिए, मुझे होना चाहता हूँ मैं. सो एंड देन because it's not base level जो आप कह रहे हो, it's not base level. I think every person who is teaching has said something or the other that has helped the personal evolution. बेशक वो obviously I'm very old, so these are some of the teachers are younger than me, and उनके experiences, and but I can see कि यार so my ability to learn is something that I take big pride in. कि यार वो है, मैं ना कोई चलते हुए
इंसान से, किसी की बात से, कुछ ना कुछ, कोई वो रोड पे आके मांग रहे होते हैं, उनके कोई सेलिंग टैक्टिक मुझे याद रह जाते हैं. सो माहौल वाज माय फर्स्ट थिंग कि माहौल होना चाहिए आपके इर्द गिर्द. मैं अपने ऑफिस में भी लोगों को कहता हूँ यार माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. उस माहौल में सेल्स करना, जब आपकी बत्ती अच्छी चल रही हो, पक्खा अच्छा चल रहा हो, एसी अच्छा चल रहा हो, म्यूज़िक उनके कंफर्टेबल हो, ये वो हो, तो वो माहौल में उनके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. So I have to cut in, I don't want to. So the people around you, so your colleagues, friends, family, they know you're going through like an Islamic program, and they know that तो मुनीब साहब has this side कि वो पहुंचे हुए होते हैं मौलियों के पास, and like what's their reaction? How do they? So मेरे दोस्त यारों के साथ, I know even in that industry there's diversity. I'm sure so many बहुत people अच्छे लोग हैं यार. ये अच्छे तो सारे हैं, मैं बोल रहा हूँ practicing, and I'm sure बहुत सारे लोग attuned with like religion all that, and I know people have this misconception of every industry, and fashion industry obviously एक जैसे कहेंगे ना हमारे यहाँ तो जो red flags है ना film and theatre and all that, and I understand कि वहाँ बहुत सारे लोग बहुत practicing हो गए, but वैसे I don't know how many fashion designers, I don't know wallahi, maybe so many, but is there perception there कि हाँ यार मुनीब साहब तो इल्मी पढ़ रहे होते हैं और वो formally enrolled होते हैं, या उनको पता है कि यार he's a spiritual guy, like how did they take I don't know, I don't call them and ask them यार तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है. हाँ मुझे बता, हाँ सुन, हाँ ये वाला सिल्क आया हुआ है और मुझे बता मेरे बारे में क्या ख्याल है. So वो मैं नहीं करता, but we have very decent relationships with people, and they're very good people that I get to work with. We have very heartfelt conversations. कभी fashion show से पहले, fashion show के बाद, party के अंदर बैठ के भी हम लोग कोई interesting conversations कर रहे होते हैं. So and a lot of these people are somewhat guided in one way or the other. So I don't judge them for what they do, because I don't want to be judged for what I do as well. But that's good, because देखिए that self identity and worth कि हमारे बहुत सारे नौजवान मतलब who are not part of this industry, who probably don't even have 1% of the exposure, are still worried कि यार how do I express my faith, and they're caring about, like they care कि, and you'll have cases of young boys and girls depressed because किसी दोस्त ने मेरे बारे में क्या कह दिया. So reaching this level of self love and comfort is there is no self love, there is a lot of self hate alhamdulillah. ये बहुत सेल्फ जजमेंट होती है. अभी मैं उस पर, मैंने आपको शुरू में आते बताया था कि मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, बट वो वैलिडेशन इवेंचुअली वो भी इज टेकन अवे स्लोली एंड स्टेडीली. एंड वन माय फ्रेंड्स, ही इज अ सिंगर, वो उसने मेरे साथ आके बैठा हुआ था कि यार देयर कम्स अ टाइम वेयर जितना तुम वैलिडेशन से दूर होगे उतना वो तुम्हारे पीछे आएगी. उसको एक बहुत बड़ा अभी प्रोजेक्ट मिला हुआ था, इनफैक्ट आज या कल रात को ही वो रिलीज़ हुआ है. बिग सिंगर इन द कंट्री, वेरी वेरी नाइस गाय. He's got a big spiritual side to him. I don't know if he's ever expressed it socially or not. But वो so the thing is कि जो बच्चे या बड़े जो भी इस dichotomy में चल रहे होते हैं, there's no, it's not a self-love situation. There's nothing wrong with wanting validation. You do want it. Everybody wants it. मतलब आप लोग भी podcast इसलिए नहीं कर रहे कि आपने अपने घर पे रखी, ये कैमरे इसीलिए लगे हुए हैं कि कोई देख ले, और हमारी नियत ये हो सकती है कि यार इसके अंदर किसी को कोई नसीहत मिल जाए. I would say it's one of the most base desires of any yeah, person. मतलब है, everybody got the validation. So it's a part of it. Don't judge yourself negatively. If you have to judge positively. 100%. करना ही है ना, तो उसमें भी उतने ही ब्रेन सेल्स लगने, उसमें भी उतने ही ब्रेन सेल्स लगने. ठीक है, मेरे अंदर हैं ही 2, तो मैं वो 2 इधर लगा लूं या मैं 2 उधर लगा लूँ, मेरे से बुरा कोई इंसान नहीं है. वो भी है, मतलब अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही गालियाँ वो सुनता हूँ. बट द पॉइंट इज कि ये फॉर्मली इसलिए किया कि और सोशली जो आपने कहा कि यार लोगों को क्या लगता है, लोग मेरे कुछ जो इसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं. अभी परसों आई थिंक वाज माय बर्थडे, सो द काइंड ऑफ विशेस आई गॉट वर वेरी उस तरह की कि यार मेंटोरिंग, ब्रदरली, वो कॉन्वर्सेशनल, स्पिरिचुअलिटी, अटरम पटरम, बड़ी मतलब इवन दो बिफोर दिस आई वाज नेवर फेल्ट लाइक कि मैं शायद इतना डिजर्विंग भी हूँ, अभी भी नहीं ज़्यादा लगता, लेकिन आई एम ओपनिंग माई सेल्फ अप टू रिसीविंग दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ एज वेल. सो एक तो ये था कि ये वाली बात के फॉर्मल इसलिए कि आपको माहौल मिल जाए, दूसरा ये कि आप किसी से कुछ सीख के ही जाते हो. बॉयज़ जो आपने मतलब द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई वाज देयर और द सेकंड टाइम वाज देयर, जो लास्ट क्लास होती है जो कुरान की होती है,
वो बिकॉज आई सीन दैट गाय समवेयर और द अदर, मुझे याद नहीं आया, मैं कहा यार ये बंदा बड़ा देखा, जिम में देखा है ये वो, फिर उन्होंने कहा नहीं वो माई बेटी स्टडीज़ विद योर बेटी, सो आई वुड बम्प इनटू हिम एट स्कूल, एंड देन उन्होंने कोई बात की कि यार अच्छा आपने ना दिन में एक लाइन या एक लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर देना है कुरान का, दैट्स इट, एंड बस कोशिश कर लें, एंड आई स्टार्ट रीडिंग इट, and then I started reading the translation, the transliteration. अब ब्रेक आई हुई है तो मेरा फिर ब्रेक आ गई है वहाँ पे भी, बट आई एम लाइक अच्छा चलो 2 हफ्ते की बात रह गई, अब मैं आ जाएगा, बिकॉज दैट माहौल डज काइंड ऑफ रीइटरेट, आपको कान में जाना पड़ता है कभी कभी. सो मैं कल भी एक दोस्त को कह रहा था यार कोई मसला नहीं, आ जाओ चिल करेंगे वहाँ पे 2-3 घंटे बैठेंगे और उसके बाद चाय शाय पियेंगे, खाना खाएंगे, वापस घर आ जाएंगे. तो वो मतलब सो दैट देन इट बिकम्स लाइक अ मोर इंक्लूसिव माहौल, कूल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. सो एक तो माहौल है, दूसरी आपकी लर्निंग है, तीसरी आपको ये होता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आ जाता है कि यार ये मैं कर रहा हूँ, और आप लोग उसको वैलिडेट रिवॉर्ड भी करते हैं. आप लोग सुनने में आए कोई सर्टिफिकेट देते हैं, उससे वो पर्चे से पता है ज़िंदगी में बड़ी वो होती है. आज तक कोई मिला नहीं तो बट सो चक्कर मिला आप लोगों को ईयर एंड, आई थिंक ईयर नहीं, मैं तो दरमियान में ज्वाइन कर लिया था ना, तो अब मैं यू हैव टू वेट टिल दिसंबर. हाँ, सो मैं बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो वो पर्चे भी मिल जाते हैं, सो आपको एक वो भी हो जाता है कि अच्छा जी ये कर लिया है कि लो पाई. बट दैट्स ऑब्वियसली नॉट फॉर दैट्स जस्ट सो आपका पॉइंट कि कैसा एक्सपीरियंस रहा. इट्स बीन फैंटास्टिक ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई थिंक बिकॉज ये माहौल बहुत ज़रूरी होता है, वंस अ वीक बैठना किसी के साथ भी. बेशक वो आपके दोस्त हों हु हैव सम नॉलेज, बेशक वो आप खुद हों अकेले बैठे हों, आप बैठना चाहिए. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट विच एवर लेवल ऑफ कोर्स यू कैन डेडिकेट सम टाइम टू, वो आपके ऊपर है. सो लकीली मेरा टाइम खुद ही निकलना शुरू हो गया, वरना ये टाइम थोड़ा सा मेरा वर्क टाइम ज़्यादा होता है, 8-9 बजे तक मेरा काम होता है. बट समहाउ वंस आई मेड दैट डिसीजन, तो मैंने उस दिन वर्कर्स को कहा कि यार अब मेरी इस वक्त अपॉइंटमेंट ना लेना. तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं आई पैसों में. सो वो भी हो गया. Just like as a final question to you, having started that journey, and I'm assuming that so much of that past journey as well and that process, what does in terms of, and just in terms of, because हम तो specifically because we're educational institute, हमारा focus भी होता है, so for yourself do you see like where's the dial, like do you think that हाँ यार ये जो मुझे अभी dose मिल रहा है, ये information मिल रही है, do you think that's a dial up from now, like what's the journey in the future, what does Muneeb साहब think हाँ यार मतलब हाँ यार I want to keep going, I want to dive deeper, is that the path you're on for yourself? I don't know. You don't know? I don't know. I obviously want to learn. मुझे वो पता नहीं है कि क्या होना है. जैसे मुझे ये नहीं पता था मैं यहाँ पे आऊँगा. मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट और मुझे यही लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा. अगर उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली मैं प्लान करने की कोशिश करूँ तो फिर मैं वो मुझे लगता है कि वो ना हो तो फिर आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो, ना कर सको तो फिर आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो आपकी. सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. आई डू फील के आई डू, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे ये कॉन्वर्सेशंस हम लोग इस तरह करते हैं ना कि because I follow Stoicism as well, and I think it's a beautiful concept, and that is also Islam, technically speaking. उसके अंदर भी यही है, perceptions, actions, control, all of that stuff. जो कि so if you can, because you guys are obviously far more literate and far more educated than did like me on so many fronts, you guys start building that connection with the current application. वो आई थिंक अ लॉट ऑफ मतलब सम पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट, बट हमारे मुल्क के, हमारे लाहौर के, हमारे कराची के या हमारे माहौल के हिसाब से बहुत कम है. सो इफ यू गाइज डू दैट, टेक दैट विद द पिच. We need you on the curriculum design team where we sit down and actually, and like on a serious note, sit through it. I'd love, if there's anything I can do, मैं देखिए मेरे लिए तो देखिए हमारे लिए important है कि we are able to reach out to as many people possible, and people that generally जिनको आप reach out नहीं कर पा रहे होते, जिनको आप दीन की बात नहीं कर पा रहे होते पर्पस के साथ, तो I think that's something that we can do together, and including the gym training. This is something we can we can so do. gym is a big part of your existence. मतलब यार मैं लोगों को अगर ये बताता हूँ कि मैंने कहीं पे ये पढ़ा था, I might be wrong, कि आप you should be battle ready.
Yeah, 100%. Right? 100%. Yeah, 100%. टिड निकाल के जो वो वाले मीठा आपने सामने रखा हुआ है इसीलिए मैं तो नहीं खा रहा हाँ लेकिन क्यों रखा है भाई आपके लिए मैं तो I didn't know you had 11% body fat. मैंने तो कहा भी था कि cucumbers and carrots. and celery I didn't know. So, yeah. no but the point is कि मतलब ये बॉडी बिल्डिंग करना या फिजिकल एक्सरसाइज करना या ये वो करना इज अ पार्ट ऑफ योर It's religion. It's हाँ religion, yeah. सो अच्छी न्यूट्रिशन रखना वो अच्छी सोर्सिंग ऑफ खाना खाना ये सारा कुछ इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर उसकी फिलॉसफी समझाएंगे लोगों को इस पर्सपेक्टिव से तो लोग अगर वो खुले हो गए तो शायद वो टाइट भी हो जाएं सो उसकी एप्लीकेशन से आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन द एक्चुअल प्रैक्टिकल 4-5-6 चीज़ें लगा दें लोगों को कि यार अच्छा इस पे लग जाओ 150 बंदे जुड़ गए हमारी तो दिहाड़ी बन गई ना ऊपर ठीक है और अल्लाह करे ज़्यादा ही बढ़ जाएं सो वो वाली सिचुएशन इफ़ यू गाइस कैन डू एनीथिंग We have to sit down, inshallah. वी आर सिटिंग डाउन ये जो है ना हैव टू अभी भी तो कोई कह रहे स्टडी ऑफ प्रेजेंस यही है गल कर लो सो व्हेनेवर इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू आई एम ऑलवेज देयर सो जो एज फार एज योर फ्यूचर वो वाला थिंग इज कंसर्न्ड आई डोंट नो व्हाट कोर्सेज आर I don't know what मैं तो आपसे not nasiha. Like I was just thinking on your own pay. Like I would love to one day or the other. I would love to Honestly, sit down and understand and dissect it, personally apply it, learn from it, and transmit. उसके I would love to do that. It'll be a personal agenda. मैंने अपना जो podcast किया था वो भी इसी तरह था कि I want to have real, authentic conversations with people. सो उसके अंदर वो सारे लोग थे जिनकी अगर आप मेरे वाले पॉडकास्ट पे बातें सुने जिनको आप लोग प्रॉब्ली कंसिडर करते हैं बहुत सुपरफिशियल बट दे हैव अ वेरी डीपली इमोशनल साइड वेरी डीपली वो एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद कोविड आई थिंक कोविड में मैंने 100 days बैक टू बैक एवरी नाइट आई वुड सिट विद समबडी हैव अ वेरी इंटेंस कॉन्वर्सेशन अबाउट यू नो सर्वाइवल मैकेनिज्म्स कोपिंग मैकेनिज्म्स इमोशनल वल्नरेबिलिटीज इमोशनल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन एवरी डे जस्ट काइंड ऑफ वर्कड आउट लाइक दैट के सारे घर पे थे मैं किसी को कॉल करता था यार आज मेरे साथ 10 मिनट के लिए बैठ जाओ इट एंडेड अप बीइंग लाइक 1 hour long conversation and the idea was to help people get through those times and what do these celebrities जो कि अपने वो influencers होते हैं या honest thought leaders होते हैं उनके लिए क्या क्या important है and there's so much learning in that amazing mashallah Munisa like jazakallah khair for your time it was genuinely not saying it for the camera lovely sitting with you I hope that we get many more moments to sit together inshallah may Allah Ta'ala accept all that you're doing and may he make whatever that you want true inshallah and jazakallah Arsan for joining as well thank you so much man this was honestly we had fun very humbled no like I swear like it was lovely sitting with you and thank you so much I'm sad that we sat after such a long time itne time se aap associated hain but mauka nahi mila but I hope that we can keep sitting inshallah